Fine. So this speed reading exercise is not for RC, but in general, speed reading is required for everything. Fine. If you pick up quant section, verbal section for any paper, it's about words. You have to read. Fine. So if there are 100 questions in the paper, so you have to read. If there are 200 questions, you have to read the full paper to solve the paper. Fine. So today my objective is to reduce your speed, increase the speed for reading by some word per minute. Okay. So whatever word we'll see, how much we'll reach or where we reach. So to do that, I first need to know where you stand or how much is your speed as of now. Fine. So first we'll do one exercise. This is the first part of the test to find out what is your word speed. Okay. Alright, so I'll take a 30-second test in which we have to find out कि what is your reading skills, reading speed, कि तुम्हारा कितना जाता है, ठीक है. So the next page I'll give you a paragraph, and I'll give you 30 seconds. Your objective is to understand, ठीक है. सिर्फ पढ़ना नहीं है, भाग के समझो कि कितना तुम्हारे समझ आता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ लिया सारा कुछ, लेकिन समझ कितना आया, that is more important. Alright, so your timer start now. So I'm giving you 30 सेकेंड का टाइम टू रीड. कितना तुम पढ़ पाते हो, आराम से समझो क्या लिखा है यहाँ पे. और एक बार टाइमर चालू है. और so टाइमर लास्ट 6 सेकेंड. और स्टॉप. तो स्टॉप करो. अब तुम मार्क कर लो कि तुमने कहाँ तक पढ़ लिया था. आपने यहाँ तक पढ़ा कि यहाँ तक पढ़ा कि यहाँ तक पढ़ा कि यहाँ तक पढ़ा. जस्ट मेक श्योर यू नो, ठीक है. तो जस्ट अ वेरी सिंपल है. आज स्टार्टिंग है, तुम्हारा पहला लेक्चर है इंग्लिश का, तो डोंट वरी अबाउट कि कितना है, तो डरने की बात नहीं है. एनीवे तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे नहीं है टू सी यू कि तुम्हारा कितना स्कोर आया. सो डोंट वरी अबाउट योर स्कोर्स. सो अभी आप बताओ कि आपने कहाँ तक पढ़ा था. अगर आपने यहाँ तक पढ़ा था, योर वर्ड काउंट इज अराउंड 100. दिस इज 100 वर्ड्स पर मिनट. बिकॉज आई गिव यू हाफ अ टेस्ट, तो दिस इज अराउंड 50 वर्ड्स. तो 100, 150, 200, अगर पूरा पढ़ लिया आपने तो 250 वर्ड्स था. तो हाँ भाई बताओ कितना है आपका, ठीक है. 100 के नीचे नॉर्मली लोग आते नहीं है, बिकॉज बीइंग अ इंडियन वी हैव ऑल अवर स्कूलिंग डन इन इंग्लिश फॉर मोस्ट ऑफ अस. सो 100 तो पार होता ही है. फाइन. 150 के ऊपर अभी अगर तुम जा रहे हो तो वेरी 150 तक इज अ गुड. 150 के ऊपर इज वेरी गुड. प्रोवाइडेड दैट वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द इंग्लिश, तो थोड़ा अच्छा है स्कूल, ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट. सिमिलरली आई टेक अनदर टेस्ट, टेस्ट नंबर 2, बिकॉज एक टेस्ट से यू कांट जज योर थिंग्स, बिकॉज हर टेस्ट का इट डिपेंड ऑन टॉपिक एज वेल. क्योंकि अगर कोई साइंस का टॉपिक आएगा तो शायद तुम ज़्यादा ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है. अगर कोई और आता तो शायद कम समझ पाओगे, ठीक है. और स्टार्ट. अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड का टाइम. और ये पैसे थोड़ा बड़ा भी है. $50 seconds. Sorry, 20 seconds. Alright, time up. ठीक है. कहाँ तक पढ़ा आपने? Please mark yourself. Okay, wherever you have done your study. Fine. If I look at the words point of view, this passage was much more easy than last passage, because the words used were very easy. But because of these numbers used, the time increased. ठीक है. So this was there to waste your time. Numbers was there to waste your time. Because your speed slow down because of numbers in this case. Otherwise, words wise is more easier than the last passage. Fine. So again, this is the 150, 220, 350 words. So where are you? Around 220. 220, 350. Fine. That is a normal word count thing. अभी मेरे को बात बताओ, ये पैसेज अच्छा था कि पहला अच्छा था? ये अच्छा लगा. This is a both of them were based on science. But this passage have more of the words, more of these things. Say 85%, 60%, 220 RPM, 1%. And most of people spend time in reading these things or understanding these things. 1% का मतलब क्या हुआ, ठीक है. यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 numbers in this. And it's impossible कि तुमको याद रहेगा. तो पढ़ने का फ़ायदा क्यों? That could have been avoided. ठीक है, वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है. दैट इज द पार्ट ऑफ टुडेज वर्कशॉप कि व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड हैव बीन डन, व्हाट शुड नॉट हैव बीन डन, ठीक है. वो आज अपन पार्ट 2 में करेंगे. माय फर्स्ट पार्ट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि होता क्या है, ठीक है.
Now I'll move to the third test, which is a paper-based test. So you should have a notebook, newspaper, anything in front of you. अगर आपके पास हमारी बुक है तो एक वर्बल का कुछ पेज खोल लो, ठीक है, आरसी का कोई पेज खोल लो, ठीक है, सो दैट वी कैन रीड दैट थिंग. एक बड़ा पैराग्राफ होगा तो अच्छा रहेगा, विच इज़ अ फुल हाफ पेज पैराग्राफ कुछ देगा तो. और डोंट स्टार्ट नाउ, प्लीज कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. स्टार्ट विद अ बिगर पैसेज. सो वी आर डूइंग दिस पैसेज हियर. फाइन. So I'll tell you when to start the time. So your time start now. So I'm giving you 30 seconds. Just try to understand इसमें क्या लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में. $15 seconds. $25 seconds. And 30 seconds. बस stop. एक पैराग्राफ वर्ड काउंट करो. हाउ मेनी वर्ड्स यू डन. जस्ट काउंट द वर्ड्स. सपोज यू आर एबल टू डू 100 वर्ड्स in half a minute, so your speed is 200 word per minute, which is a very good. 200 plus is a good score as a starter. Obviously it's not a very good speed, but it's a decent enough speed. ठीक है. So this is my chart which I have made according to my last 5 years of my teaching. That 100 and below. 100 अगर तुम्हारा स्क्रीन पे है तो यहाँ पे 120 आएगा. 20% इट्स मोर ईजी टू रीड ऑन पेपर, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 20% बढ़ जाएगी. ठीक है. तो 100 आर पे इनसफिशिएंट. 200 वर्ड पी एम इज़ अ एवरेज रीडर. सो ऑल ऑफ यू आर एज ऑफ नाउ एवरेज. 300 प्लस इज़ अ गुड एंड 400 प्लस इज एक्सलेंट. तो हमारा टारगेट है कि 200 से पहले 300 लेके आना, फिर 300 से 400 लेके आना. ठीक है. और वो करना क्यों है, आई टेल यू द इम्पोर्टेंस. इफ़ आई टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस अबाउट दिस थिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट CET का एग्ज़ाम, CET एग्ज़ाम में तुम्हारे आउट ऑफ 50 मार्क्स ऑफ वोकैब ऑफ वर्ड्स, अराउंड 35 वर्बल रीजनिंग, वर्ड्स, RC सब जोड़ जाड़ के अराउंड 80 क्वेश्चन विल कंटेन रीडिंग पैराग्राफ्स. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट कैट का एग्ज़ाम, कैट में आपका 12 मार्क का RC पैराजम्पर रीडिंग करते करते आउट ऑफ टोटल 60 क्वेश्चन अराउंड 20 क्वेश्चन प्लस विल हैव रीडिंग. तो मतलब रीडिंग तुम्हें करनी है. और अगर तुम अपना ये RPM यू कैन इंक्रीज फ्रॉम टुडे एवरेज 200 विच इज़ द क्लास का एवरेज टुडे. अगर 200 से 400 ले जाते हो तो तुम्हारा टाइम टेकन इज हाफ. तो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीडिंग फास्ट, रीडिंग फास्ट. हर क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हें रीडिंग करना ही पड़ेगा. Fine. So it's a very very important task. But the first task before you start your verbal is improve your reading. अगर तुमने अपना 200 का 300 भी कर लिया, you are increasing your speed by 50%, or you are able to solve 50% question more. Are you getting the importance of reading fast? ठीक है. But the problem with reading fast is अगर तुम स्पीड इंक्रीज करने जाओ तो तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन कम हो जाता है. पर तो मैंने सारा लिया लेकिन समझा घंटा में तो कोई फ़ायदा नहीं था. ठीक है. So the objective is to manage both the things, कि समझ भी आए और पढ़ भी लो. That is the main problem. Alright, so that is what we are going to focus on in the next workshop after some time. Fine. So these are my CET solutions. There are 5-6 solutions we will follow today. I'll explain you all these solutions one by one to increase your speed. And trust me, after this class workshop, I'll again take another test, and then you will see the improvement in your scores. ठीक है. दैट आई कैन प्रॉमिस यू कि तुम्हारा अगले आधे घंटे के बाद स्कोर स्पीड इंक्रीज हो गई होगा. समझ आया ना ये बात की बात है, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगा. ठीक है.